નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું શીતલ ધનાવાડિયા આપ સૌનું વિમળા વિદ્યાલય ઈ ક્લાસીસમાં હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી જેની અંદર પ્રથમ પ્રકરણ છે ચિત્ર કે સંગ સંગ ચિત્રપાઠની સમજણ મેળવીશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ પ્રકરણમાં સમજણ મેળવીશું। તમે જુઓ કે ચિત્ર કે સંગ સંગ અહીંયા ચિત્રપાઠ, તો અહીંયા આ એક ચિત્ર આપેલું છે ને એ ચિત્રને આધારે આપણે અહીંયાથી એની અંદર શું ઘટના થઈ રહી છે એ ઘટનાને આપણે જોવાની છે અને એ ઘટનાને આપણી રીતે સમજવાની છે અને એના આધારે આપણે સ્વયં એની અંદરથી પ્રશ્ન પણ શોધવાના છે અને સાથે સાથે જવાબ પણ એટલે કે ઉત્તર પણ એની અંદરથી શોધવાના છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે બધા ન્યૂઝપેપર કે છાપાની અંદર વાંચતા હશો, ઘણી વખત એવા કોઈ બે ચિત્ર આપેલા હોય, એટલે એક ચિત્ર અને બે ચિત્ર એક જ હોય, અલગ અલગ ચિત્ર હોતા નથી, પરંતુ તમને અંદર નીચે સૂચના લખ્યું કે આ બંને ચિત્રમાંથી 10 એવી ભેદ રહેલા છે તે તમે શોધીને કાઢો। તો તમે બંને ચિત્રમાં જોશો તો એક ચિત્રની અંદર કે પોપટ બેસેલો હોય છે, એક ચિત્રમાં હોતો નથી, બરાબર। એક ચિત્રમાં બે વ્યક્તિ આપેલા હોય તો એક ચિત્રમાં હોતા નથી। તો આ રીતે અલગ અલગ ભેદ રહેલા છે અને કુલ 10 ભેદ રહેલા હોય છે અને આ 10 ભેદ શોધવા માટે ખૂબ જ તમારે પ્રયત્ન કરવો પડે છે। કમસે કમ 8 જેટલા ભેદ તો તમને મળી જાય, પરંતુ બે ભેદ એવા હોય કે જે બરોબર ચિત્ર જોવાથી, ધ્યાનથી જોવાથી પછી તમને એ ભેદ મળે છે। અમુક ભેદ એવા હોય કે આપણને નજરમાં આવતા નથી અને પછી એનું બરાબર ચિત્રને જોઈશું ધ્યાનથી, પછી આપણને એ ભેદનો એટલે કે આપણને જે ઉત્તર મળે છે। તો અહીંયા જ સૌપ્રથમ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે અહીંયા સૌપ્રથમ આ ચિત્ર આપેલું છે, અહીંયા આપણે ચિત્રપાઠ એટલે કે ચિત્રની આધારે આપણે ઘટના થાય છે, જેને આધારે આપણે પ્રશ્ન અને ઉત્તર બંને જ શોધવાના છે। તો આ ચિત્રપાઠની અંદર તમારે આ જે ચિત્ર આપેલું છે, ચિત્ર કે સંગ સંગ એટલે કે આ ચિત્ર આપેલું છે એ ચિત્રને ઘટના શું થઈ રહી છે તમે પહેલાં ધ્યાનથી એને જુઓ। આની અંદર શું છે, આ શેની ચિત્ર છે, આ શેનું દ્રશ્ય છે, શું છે અહીંયા, એ બધું જ વસ્તુ તમારે પહેલાં તો ધ્યાનથી જોવાનું છે। તો તમે ધ્યાનથી જુઓ પહેલાં ચિત્રને, સૌપ્રથમ હું પણ જોઉં અને તમે પણ જુઓ, તમને શું દેખાય છે એ પણ જુઓ અને મને પણ શું દેખાય છે એ પણ હું જોઉં। તો પહેલાં સૌપ્રથમ બધી જ જગ્યાએ આપણે ચિત્રને બધી જ જગ્યાએથી કોઈ પણ એવી જગ્યા બાકી નહીં રાખીએ કે આપણે ત્યાં જોઈશું નહીં। તો તમે અહીંયા ચિત્રની અંદર તમને શું દેખાય છે, પહેલાં તો અહીંયા એક સડક દેખાય છે કે નથી દેખાતી? દેખાય છે। અહીંયા પછી સડક ઉપર બધા સાધનો જઈ રહ્યા છે, પછી અહીંયા એક ફૂટપાથ છે એટલે કે અહીંયા સાઈડમાં તો શું છે, અહીંયા એક મોચી બેઠેલો છે કે જે પોતાનું શું કરી રહ્યો છે, મતલબ ફૂટ પોલિશ માટે મોચી બેઠેલો છે। અહીંયા એક કૂતરો ઊંઘેલો સૂતો જોયેલો છે, એક વ્યક્તિ છે જે ગુબ્બારા એટલે કે ફુગ્ગા લઈને વેચી રહ્યો છે। અહીંયા એક સ્ત્રી એટલે કે માથા ઉપર શું છે એની ટોપલી એટલે કે જેની અંદર શાકભાજી લઈને એ વેચવા જઈ રહી છે, એટલે કે શાક વેચનાર સ્ત્રી। અને અહીંયા એક વ્યક્તિ જે સાયકલની અંદર શું પૂરી રહ્યો છે, હવા પૂરી રહ્યો છે। પછી અહીંયા એક સ્ટેન્ડ છે, સ્ટેન્ડની ઉપર એક પોપટ બેઠેલો છે। અહીંયા બાઇક આગળ છે, રિક્ષા પાછળ છે અને બધા સાધનોને અહીંયા વ્યક્તિ જોઈ રહ્યા, અહીંયા પક્ષી ઉડી રહ્યા, અહીંયા મકાનો છે। તો આ રીતે આ દ્રશ્યની અંદર તમને વસ્તુઓ દેખાય છે। હવે તમારે ચિત્ર કે સંગની અંદર આવા બે ચિત્ર આપેલા છે, એક આપણે પેજ 1 ઉપર અને પેજ પાછળ 2 ઉપર પણ ચિત્ર આપેલું છે। તમે જોઈ શકો કે પ્રથમ ચિત્રની અંદર શું શું ઘટના થઈ, તો તમે જોઈ શકો છો કે એવું પ્રથમ ચિત્ર હતું એ જ પાછળ ચિત્ર છે, એમાં કોઈ અલગ નથી। મેં તમને કહ્યું કે ન્યૂઝપેપરની અંદર બે ચિત્ર આપેલા, પરંતુ સામાન્ય ભેદ, તો અહીંયા બંને એક જ ચિત્ર છે, એમાં કોઈ અલગ નથી, પરંતુ પ્રથમ ચિત્ર તમે જોઈ શકો છો કે કેવું છે, એકદમ ક્લીન છે, એમ કે સારું છે, બધી જગ્યાએ વ્યવસ્થિત વસ્તુ પડી છે। પરંતુ તમે જુઓ કે ચિત્ર જે પાછળ છે એની અંદર એકદમ કંઈ કામનું એટલે કે કેવું ચિત્ર બની ગયું છે, એકદમ ભયાનક ચિત્ર બની ગયું। તો આ ભયાનક ચિત્ર હોવાનું કારણ એવું તો શું થયું આ ચિત્રની અંદર, તો આ ભયાનક ચિત્ર બની ગયું। તો તમે અહીંયા આપણે સૌપ્રથમ અહીંયા આ જ આપણે સમજણ મેળવવાની છે। તમે બધાએ આ ચિત્રને ધ્યાનથી વિદ્યાર્થી મિત્રો જોઈ લીધું, તમને ખબર છે કે આની અંદર તમને શું દેખાય છે। તો સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા જોઈશું કે પહેલાં તો શું દેખાય છે, તો ચિત્રની અંદર એટલે કે આપણે જોઈએ હવે તો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરીએ। તો साइकिल वाला साइकिल के अंदर टायर से क्या पंप से क्या कर रहा है, तो उसमें हवा भर रहा है।
एक गुब्बारे वाला क्या कर रहा है, गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे। તમે જોઈ શકો છો કે શું થઈ રહ્યું છે, કેવી રીતે। તો એક સાયકલ वाला अपनी साइकिल में क्या भर रहा है, तो पंप से हवा भर रहा है। क्या कर रहा है, तो अपने पंप से साइकिल के अंदर हवा भर रहा है। उसके पास देख सकते हो तो एक गुब्बारा वाला खड़ा है और गुब्बारे वाले क्या कर रहा है, तो उसने हाथ में गुब्बारे और हवा में गुब्बारे उड़ रहे हैं, लेकिन बेचने निकला है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने निकला है और उसके हाथ में देखो, ये देख रहे गुब्बारे, और गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। बस उसके पास आप फिर देख सकते हैं कि एक कुंजड़िन है, लेकिन सब्जी बेचने वाली कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली स्त्री। इसका मतलब क्या होता है, कुंजड़िन। तो कुंजड़िन क्या कर रही है, टोकरी में ये जो सब्जी देखा है छाबलू, इसको क्या कहते हैं, टोकरी। तो टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है। क्या कर रही है, तो आप देख सकते हो कि गुब्बारे वाले पास कौन खड़ा है, तो गुब्बारे वाले के पास कौन खड़ा है, तो एक स्त्री है। तो स्त्री को कौन है, सब्जी बेचने वाली है। तो सब्जी बेचने वाली स्त्री को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, तो कुंजड़िन बोलेंगे। तो उसके हाथ में, उसके सर पे क्या है, एक टोकरी है, और टोकरी के अंदर अलग अलग लेके विविध उसमें सब्जियाँ है, और सब्जियाँ लेके वो बेचने के लिए निकल पड़ी है। फिर एक कुत्ता देखो, उसके पास एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है, दिख रहा है आपको। एक कुत्ता जो यहाँ पे बैठा हुआ है और लेटा हुआ है, मतलब सोया हुआ है। दुकान के टन पर तोता बैठा हुआ है। देखो तुम्हें दिखाई છે स्टैंड, क्या स्टैंड पर क्या बैठा हुआ है, तो एक तोता बैठा हुआ है। आप चित्र में हम सब जगह को देखना है, क्योंकि हमें इस चित्र से आधारित जो हमारा दूसरा चित्र है उसका भी प्रश्न सॉल्व करना है कि इस चित्र ऐसा, तो वो चित्र फिर ऐसा कैसे हुआ, तो हमें जानकारी यहाँ ढूंढनी है। तो हमने देखा कि सब यहाँ पे कुत्ता सोया है, तो स्टैंड पर क्या बैठा हुआ है, ध्यान से देखना कौन सी प्रवृत्ति कहाँ पे है, क्योंकि फिर दूसरे चित्र में हमें ढूंढना है कि पहले चित्र में तोता यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, दूसरे चित्र में उसकी जगह क्यों बदल गई है, ये मोची की जगह क्यों बदल गई, कुत्ते की जगह क्यों बदल गई है, ये साग सब्जी बेचने वाली कुंजड़िन की जगह क्यों बदल हो गई। तो ये सब चित्र में आप पीछे देख सकते हैं, देखो कि चित्र के पीछे आप देखो कि उसमें क्या क्या बदला गया, तो बदल गया उसका रीज़न क्या है, वो हमें जानना है। तो यहाँ पे तोता स्टैंड पे बैठा हुआ है, मतलब लेटा हुआ है। फिर सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठा कर जा रहा है, दिख रहे हैं आप, एक व्यक्ति है, वो कहाँ जा रहा है, तो बाइक पे बैठकर वो जा रहा है। किसमें पर बैठा है, तो बाइक पे बैठा हुआ है। फिर दूसरा कि बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। आप देख सकते हैं कि बाइक के पीछे क्या है, तो एक रिक्शा जा रही है, और रिक्शे में एक ही यात्री बैठा हुआ है। आप देख सकते हो कि एक बाइक वाला जा रहा है, उसके पीछे क्या आता है, तो उसके पीछे एक रिक्शा आती है, और रिक्शा के अंदर एक ही यात्री बैठा है, और रिक्शे के पीछे 2 कार आ रही है। आप देख सकते हो कि रिक्शे के पीछे कितनी कार आ रही है, तो 2। आप चित्र के आधार से काउंट कर सकते हैं, आप गिन सकते हो, तो कितनी है, 1 और 2, लेकिन 2 है। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ है और शायद ग्राहक की राह देख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक मोची क्या कर रहा है, तो बूट पॉलिश के लिए जो ग्राहक आते हैं उसकी ग्राहक की अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया, इसलिए सड़क पे वो बैठा हुआ है। तो क्यों बैठा है, तो उस ग्राहक की राह देख रहा है, कोई ग्राहक आए और उसके बूट पॉलिश वो करे। तो आप देख सकते हो यहाँ मोची बैठा हुआ है। तो आज चित्र में कौन कौन सी घटना हुई है, आप चित्र में कौन सी जगह कहाँ पे है, वो भी मैंने आपको समझाया कि मोची क्या कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी साइकिल में पंप से क्या पूर रहा है, तो हवा पूर रहा है। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने निकल पड़े, उसके गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। फिर एक कुंजड़िन अपनी सब्जियां लेने टोकरी भर के सब्जियां बेचने चली है। स्टैंड पे कौन बैठा हुआ है, तोता बैठा हुआ है, और एक कुत्ता सड़क पे लेटा हुआ है, मतलब सोआ। और साथ में एक बाइक वाला व्यक्ति बाइक पे जा रहा है, उसके पीछे एक रिक्शा आ रही है, और इस रिक्शा में एक ही यात्री बैठा है,
और उस रिक्शा के पीछे 2 कार आ रही है। तो इस पहला प्रथम जो हमारा ये चित्र है इसके अंदर ये भी घटना हो रही है और आप समझ सकते हो कि कौन कौन सी घटना इसमें हुई और कौन कौन सी जगह कहाँ पे है वो हम समझते हैं। अब आपको मैं बताऊंगी इस चित्र के नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं, आप चुन सकते हैं। तो उस चित्र के प्रश्नों को पढ़ना है और इस चित्र के आधार हमें ढूंढना है। तो हम इस पहले ढूंढेंगे क्या लिखा है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो आपको मैंने बताया कि पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। तो पहले को अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहला उसका उत्तर क्या आएगा। तो चित्र की साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। बनेगा ना। फिर कुछ दिन अपनी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के स्टैंड पे तोता बैठा हुआ है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शा में एक ही यात्री बैठा हुआ है। रिक्शे के पीछे 2 कार आ रही है। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ है और शायद ग्राहक की राह जोड़ रहा है। तो ऐसे इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है। तो क्या कितनी क्रियाएं इसमें हो रही है, तो 9 क्रिया हो रही है इस चित्र में। कितनी क्रिया, तो 9। यानी कि इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है तो मैंने आपको बता दिया। पहले मैंने आपको समझा दिया कि क्या क्या कौन कौन सी क्रिया हो रही है। मैंने फिर आपको इस प्रश्न का उत्तर भी दे दिया कि कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। बच्चों आपको भी खास इस प्रश्न को ध्यान नहीं लेना, लेकिन खुद अपने स्वयं आपको क्या करना है, इसको भी ध्यान दिए बिना इस प्रश्न के उसमें ढूंढकर उसका उत्तर ढूंढना है। इसमें कोई कॉपी या कुछ करना नहीं है, आपको प्रश्न पढ़ना है और यहाँ से इस चित्र के आधार से आपको उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। कोई कॉपी करनी नहीं है। यहाँ पे लिखे गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। अब आप देखिए कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ते हैं, मतलब आपको प्रश्न लगता है तो गुब्बारे में आप जानते हो, आप गुब्बारे से साथ खेलते हो, आपको पता है कि गुब्बारे कौन से गुब्बारे हवा में उड़ते हैं। तो वही गुब्बारे हवा में उड़ते हैं जिसमें गैस भरा हुआ होता है वो। એટલે तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका उत्तर क्या आएगा, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो गुब्बारे हवा में इसलिए उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरा हुआ है। तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसका क्या जवाब आएगा, तो उसका उत्तर आएगा कि गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उसमें गैस भरा हुआ है। आपको ऐसे उसका उत्तर लिखना है। फिर हमारा तीसरा, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे फिर से प्रश्न, ट्यूब। अब आप सोचते हो कि ट्यूब यहाँ पे कहाँ है, तो ट्यूब को तो कौन सी ट्यूब की बात हुई है, तो यहाँ पे ये वाली ट्यूब, साइकिल के अंदर जो ट्यूब होती है उस ट्यूब की बात की है। तो यहाँ पे उसमें से एक प्रश्न निकला है। आप यहाँ से अलग अलग बहुत सारे प्रश्न निकलते हैं। तो ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है, तो आप सोच सकते हो कि उसका क्या हुआ हो, ट्यूब में हवा क्यों कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती, तब हवा भरी जाती है। आपको पता है, आप साइकिल से साथ खेलते हो, आप बच्चे हो, आप साइकिल के साथ खेलते हो, आपको साइकिल के बारे में आपके पास बहुत सारी जानकारी आपको पता है कि साइकिल के अंदर हवा कब भरी जाती है। तो क्यों कब भरी जाती है कि साइकिल के अंदर कम हवा हो या बिल्कुल ना हो, तब उसमें आप हवा भरते हो। ट्यूब में हवा भरने से टायर ढोस यानी कि टायर एकदम टाइट हो जाता है और टायर होने पर साइकिल ठीक से चलती है। आपको पता है ना कि साइकिल जो ट्यूब है जो उसमें हवा भरने से जो हमारा टायर जो ट्यूब है एकदम फूल जाती है और एकदम उसका लेवल अच्छा हो जाता है। उसके आसानी से हम साइकिल को चला सकते हैं, कि ज़मीन ऊपर वो आसानी से साइकिल चल सकते हैं। इसलिए हमें साइकिल के अंदर हवा भरनी पड़ती है। उसकी जो साइकिल के अंदर हवा ना हो तो हम अच्छे से साइकिल चला नहीं सकते, हमारी साइकिल अच्छे से चलती नहीं है। तो हमें इसलिए हमें बारंबार हमें साइकिल के अंदर हमें हवा भरनी होती है। तो इसमें एक व्यक्ति क्या कर रहा है, तो अपने पंप से टायर के अंदर हवा भर रहा है। तो इसका क्या आएगा आंसर, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो ट्यूब में जब
ट्यूब में हवा कम हो तब और बिल्कुल ना हो तब हम हवा भरते हैं। तो उसका आंसर हमारा उत्तर ये आएगा। हमारा 5वां क्वेश्चन है, यहाँ हमारा चौथा क्वेश्चन है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है। आप देख सकते हो चित्र के आधार से आपको आंसर आपको भी ढूंढना है। मैं बताती हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर क्या था, लेकिन बच्चों आपको भी खुद स्वयं इस प्रश्न का उत्तर स्वयं इस चित्र के आधार बनाना है, इसका जवाब शोधना है कि बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको बताया पहले भी चित्र में क्या कौन कौन सी घटना है, यहाँ पे कौन कौन सी क्रिया हो रही मैंने आपको बताया। तो मैंने आपको बताया था कि कुत्ता क्या कर रहा है, तो सड़क पे लेटा हुआ है। तो वो लेटा हुआ है मतलब यहाँ पे तो क्या लिखा है, इसका मुंह लटका कर क्यों लेटा है। अब वो मुंह लटका कर उसका जमीन के साथ उसका मुंह है, तो उसको लेटा कर क्यों है, तो आपका इसका आंसर ढूंढना है। तो उसका आप क्या सोचिए, आप अपनी तरह आपको इसमें कि चित्र के कोई किसी का सपोर्ट लेके या किसी को पूछ के इसका आंसर नहीं, आपको स्वयं आपको जो लगे वो इसका आंसर लिखना। आपको क्या लगता है क्यों ऐसे मुंह फुला कर या कुत्ता या बेन जमीन के साथ लेटकर वो उसका सर रखा है, तो इसमें ऐसा क्यों किया है, तो आपको उसका आंसर लिखना है। तो क्या आएगा आप बताओ। तो शायद उसे नींद आ रही है, वो सो रहा है, क्या है। तो इस चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेटा है, क्योंकि कुत्ते को नींद आ रही है, इसलिए वो क्या कर रहा है, मुंह लटका कर लेटा है। तो उसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेटा है, तो उससे नींद आ रही है इसलिए मुंह लटका कर लेटा है। ऐसा हम आंसर मैं लिखाती हूँ। आपको भी सोचना है तो आप सोच सकते हैं कि इसमें आपको क्या उत्तर लिखना है, लेकिन मैं तो यही बताऊंगी कि कुत्ता अभी सो रहा है इसलिए ऐसी स्थिति में है। अब हमारा आगे प्रश्न है, कुछ दिन सब्जी बेचने वाली कहाँ जा सकती है। आपको ये प्रश्न का उत्तर भी आपको स्वयं इस चित्र के आधार से आपको देना है। आप कुछ दिन लेकिन सब्जी बेचने वाली, तो सब्जी बेचने वाली कहाँ जा सकती है, वो कहाँ जा सकती है, इसका प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो क्या लिखोगे, तो सब्जी बेचने वाली घर और गली जा सकती। क्यों जाती है, आपको पता है कि सब्जी वाली है, उसको सब्जी बेचनी है और वो सब्जी कभी बेच सकती है कि जो घर जाएगी और गली लेके सब जगह की सोसाइटी के अंदर घूमेगी फिरेगी, तभी वो अपनी सब्जी बेच सकते हैं। उसके सिवा वो अपनी सब्जी बेच सकती नहीं है। आप भी जानते हो आपके मोहल्ले के अंदर भी सब्जी बेचने वाली स्त्रियाँ आती है, कुछ दिन आती है और आप सब्जी उसके पास लेते हैं। तो यहाँ भी यही आंसर हमें लिखना है, हमें यही उत्तर लिखना है। देखिए कुछ दिन कहाँ जा सकती है, तो कुछ दिन कहाँ जा सकती है, तो कुछ दिन घर और गली लेके सब्जी बेचने के लिए जा सकती है। ऐसा आंसर हम इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। फिर हमारा प्रश्न है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो आप प्रश्न फिर से आपको अपने मगज पे थोड़ा जोर देना पड़ेगा और उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ पे रिक्शा कहाँ पे, तो यहाँ पे। तो यहाँ पे रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है प्रश्न, तो रिक्शे में एक यात्री का क्यों बैठा है, तो आपको सोचना है ऐसा क्यों होगा, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। तो आपको इसको उत्तर ढूंढना है। आप सोचो क्या आएगा उसका आंसर, क्या उसका उत्तर आएगा, आपको उसको ढूंढना है। तो क्या आएगा बोलो। तो उसका मैं बताती हूँ, मैं अपनी तरह से उसका उत्तर लिखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे सारे उत्तर मैंने आपको दिए, तो इसकी तरह इसका भी रिक्शे का है, ये भी उत्तर मैं देती हूँ। आपको भी अपनी तरह सोचना है कि रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, उसका आंसर आपको उत्तर आपको भी ढूंढना है, लेकिन मैं अपनी तरह से आपको लिखाती हूँ। तो इसका आंसर ये होता है कि रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियाँ नहीं मिली। तो रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है, क्योंकि उसको दूसरी सवारियाँ नहीं मिली, यानी कि दूसरा यात्री उसे मिला नहीं होगा, इसलिए वो एक ही यात्री को लेकर वो जा रहा है। तो ऐसा मैं उसका उत्तर लिखती हूँ कि उसका ऐसा उत्तर मैं बनाती हूँ। आपको भी इस सारे प्रश्न दिए गए उसके आपको स्वयं मैंने तो उसको उत्तर कैसे बनाए वो मैंने भी बनाए, आपको भी स्वयं इसके उत्तर बना सकते। आप भी इस बारे में सोच सकते कि उसका क्या हमें उत्तर लिखना है। तो आप सबके ये सारे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है वो मैंने आपको सिखा दिया। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણું પ્રથમ પેજ અહીંયા પૂર્ણ થાય છે અને બીજા પેજ જે આપણું જે બાકી છે એ નવા ભાગની અંદર આપણે પૂર્ણ કરીશું। ત્યાર સુધી ધન્યવાદ।